different data sources. It could be file sources, databases, data warehouses हो सकते हैं, cloud, online. Okay, कैसे करते हैं? Even you can see all the steps here. You can go to get data section. ठीक है, so you can get the data and you can click on load, right? So load will directly load into your Power BI desktop, transfer will get back to your Power Query editor. So this is what we have even seen the hands-on, correct? So data cleaning, Power Query specifically, हमने देखा है कि cleaning क्यों important है, because we have been learning from the ETL topics, correct? So process of removing errors, duplicates, ठीक है, missing values, okay, सारी चीज़ें करते हैं. So Power Query editor हमको पता है कैसे ओपन करना है, right? Get data, select data, transform data. So common data cleaning operations जो हमने अभी किया, right? Duplicate removals, unnecessary column removal, rows, data type change करना, ठीक है, null values को handle करना. So जो हमने अभी किया, it's everything there in a slide itself. See, changing data types, okay, identifying the missing data, so you can actually filter it and try to identify it. Replace करना है, कोई we have a replace values option, right click replace, या अगर आप ribbon से select करना है, can do the replace, ठीक है. This is what you can do it, right? So data transformations भी हमको पता है, so it's just changing a data, raw data into a format where you can do the analytics on that. So आप split column कर सकते हो, group by कर सकते हो, pivot unpivot कर सकते हो, correct? So all these things जो हमने अभी discuss किया है. Okay, so what is the answer for this? शुभांगिनी, दैट व्यू के अंदर, और व्यू पे जाके आप उसको अनचेक करो. हाँ, what is the answer for this? So what happened when you click load instead of transform data? So अगर आप load click कर रहे हो instead of transform data, so data opens in Power Query और data gets deleted और data is directly loaded into report view, it directly loaded into your report view. ठीक है. Fine. So next we'll go for data modeling topic. Okay. So data modeling is something which is a schema जो हमने ETL में already discuss किया, but let's try to understand what is this. Then हम इसका hands on में देखेंगे. ठीक है. So data modeling is a process of organizing a data into a structured tables and defining a relationship between them. ठीक है. सो जब आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, राइट, सो इवन यू विल नॉट बी डीलिंग विथ वन टेबल. डू यू थिंक आप सिर्फ एक टेबल पे काम करेंगे? नो, देयर विल बी अ मोर देन 40 50 60 टेबल्स जहां पर आप सारे एक दूसरे टेबल से कनेक्टेड होंगे, करेक्ट? अगर आपको इस तरीके का डिजाइन बनाना है, इस तरीके से आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है दूसरे टेबल्स के साथ, यू विल बी डूइंग अ डेटा मॉडलिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन इज. ओके, डेटा मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ organizing a data into structured tables and defining a relationship between the two particular tables, okay, so that the data can be analyzed accurately, efficiently and meaningful. मतलब जब आप कोई भी एक एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे हो, हर डेटा आपको एक ही टेबल से नहीं आता है, ठीक है. सो ऑफ कोर्स you need to join that particular tables, ठीक है. So based on that relationship we're going to pull that data, जैसे हमने merge joins पढ़ा है, right? So same way ये joins नहीं है, joins के लिए we have an option called merge. मर्ज अलग है, ये अलग है, एक रिलेशनशिप है, जस्ट टाइंग दिस टू डेटा सेट्स टुगेदर, ठीक है. सो दैट अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आना है, सो बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम यू कैन एक्चुअली पुल दैट पर्टिकुलर डेटा, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ डेटा मॉडलिंग इज. सो डेटा मॉडलिंग के अंदर जब आप डेटा मॉडलिंग को डिफाइन करना चाहते हो, ओके, देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स फॉर दैट. मतलब जब आप डेटा मॉडलिंग के बारे में बात करें, सो व्हाट आर थिंग्स यू नीड इट इन पावर बीआई. ओके, सो ये सारे विजुअल्स थोड़े अच्छे हैं. लेट मी जस्ट से दिस. सो ऑफकोर्स जब आप दो टेबल्स के बीच में कोई भी एक रिलेशनशिप बना रहे हो, सो ऑफकोर्स आपको एक कॉमन कॉलम होना चाहिए. जैसे वी हैव ए कस्टमर का टेबल, हर एक कस्टमर सेल्स करता है, करेक्ट? यू गोना परचेस समथिंग. सो हमारे कस्टमर का टेबल है और सेल्स का एक टेबल है, तो इन दोनों को बीच में मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है. सो रिलेशनशिप बनाने के लिए पहला हमारा जो रिक्वायरमेंट है इज अबाउट द कॉमन कॉलम. उसको हम बोलते हैं यूनिक कीज, करेक्ट? सो ये आपका यूनिक की है, दिस इज प्राइमरी की फॉर दिस कस्टमर्स एंड दिस इज योर प्राइमरी की फॉर योर सेल्स, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कीज. सो इन दोनों के बेसिस के हिसाब से हम इन दोनों को रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है. सो इज योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है. एंड जब इसका दोनों के बीच में जो हम रिलेशनशिप बनाएंगे, इसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी, ठीक है. सो वी कैन सेट समथिंग कॉल्ड कार्डिनैलिटी. सो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है? ये अलग अलग टाइप्स ऑफ कार्डिनैलिटी है. वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. इसका मतलब क्या है? सो फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर टेबल के अंदर ये कस्टमर ये वन है, दिस इज मैनी. इसका मतलब क्या है? इस टेबल के अंदर एक ही कस्टमर हो सकता है, लेकिन इस कस्टमर आईडी कैन बी मैनी. कैन यू टेल लॉजिकली, करेक्ट? बिकॉज एक कस्टमर मल्टीपल सेल्स कर सकता है. सो जब हम इसका रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि ये इसका कार्डिनैलिटी है. मतलब इसका द वे ऑफ जो हमने
सेटिंग्स करा इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशनशिप बनाया, पहला रिक्वायरमेंट था कॉमन कॉलम्स एंड दूसरा रिक्वायरमेंट है कार्डिनैलिटी। मतलब एक काम कैसे करेगा। सो ये कस्टमर के अंदर मुझे एक वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाना है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक ही आईडी होता है, लेकिन इसमें ये आईडीज मल्टीपल हो सकते हैं। वाई? बिकॉज एज पर लाइक जो हम डिजाइन करते हैं, एक कस्टमर के अंदर एक ही कस्टमर यूनिक होता है, लेकिन वो मल्टीपल सेल्स कर सकता है, तो इसलिए हम बोलते हैं वन टू मेनी। ठीक है। सो वन टू मेनी। सो वन टू वन का मतलब क्या है? वन टू वन एग्जैक्ट वन, ये इसका ये आईडी सिर्फ इधर भी एक ही होना चाहिए। ओके, वी आर डिफाइनिंग दैट कंस्ट्रेंट्स। ओके, द हाउ द रिलेशनशिप हैज टू बिहेव, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप। सो इधर भी वन होना चाहिए, इधर भी वन होना चाहिए, वी कैन नॉट हैव सम डुप्लीकेट्स। जब हम बोलेंगे वन टू मेनी, सो इधर डुप्लीकेट हो सकते हैं। वाई? बिकॉज वी हैव सेलेक्टेड एज वन टू मेनी। ये कहाँ पर सेलेक्ट करेंगे? इन पावर बी आई शो। ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन हैव रिवर्स ऑल्सो, मेनी टू वन, मेनी मेनी भी हो सकता है। ठीक है। सो स्टार सम इज मेनी मेनी, इधर भी मल्टीप्लीकेट्स हो सकते हैं और इधर भी डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। द डिफिनेशन ऑफ द कार्डिनलिटी इज अबाउट हाउ द डेटा हैज टू बी, वेदर द डेटा हैज टू बी यूनिक और यू कैन हैव द डुप्लीकेट ऑल। सो अगर एक हो तो उसको हम बोलते हैं वन, और वो मेनी मतलब डुप्लीकेट्स अलाउ कर सकता है उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं मेनी। ओके, दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी। सो जब आप मॉडलिंग के अंदर काम कर रहे हो, सो यू नीड टू चेक दिस टू कंडीशंस, व्हाट इज द कॉमन कॉलम एंड व्हाट इज योर कार्डिनलिटी। तो इसको हम डेमो करेंगे। सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट ट्राई टू रिमूव दिस। सो मेरे उसी एक्सेल शीट के अंदर, यू कैन आई रिमूव ऑल दिस। सो उसी एक्सेल शीट के अंदर मैंने एक फैक्ट टेबल और मैंने डायमेंशन टेबल को बनाया। ठीक है। लेट मी जस्ट डिलीट एवरीथिंग। लेट मी जस्ट लोड दैट फैक्ट एंड डायमेंशंस। सो आप उधर देख सकते हो, सो वी हैव समथिंग कॉल्ड फैक्ट एंड डायमेंशंस। लेट मी जस्ट डिलीट दिस, डिलीट, एंड मैं डायरेक्टली इधर से लोड करूंगा। ओके, सो व्हाट आई डू, आई क्लिक ऑन सोर्स डेटा, एक्सेल वर्कबुक, and in the Excel workbook, I'll select the same file. This time I'll close it. I'll select this. इसके अंदर आप तीन टेबल्स देखते हो, समथिंग कॉल्ड फैक्ट टेबल एंड डायमेंशंस टेबल। मैंने इसी तरह नाम बनाया। ठीक है, यू कैन सी हियर क्विकली। सो वन इज योर फैक्ट, ये आपका फैक्ट टेबल है। आई होप यू नो व्हाट इज फैक्ट एंड डायमेंशंस। ओके, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, बट इफ यू डोंट नो, आई जस्ट समराइज। ठीक है। सो देर इज समथिंग कॉल्ड फैक्ट, आई वांट दिस टेबल, एंड वी हैव डायमेंशंस। वेयर इज डायमेंशंस? अ डिम कस्टमर, वी नीड डिम डेट ऑन डिम प्रोडक्ट। ठीक है, डिम प्रोडक्ट में चार टेबल्स को अब कनेक्ट, जो लाइक आई एम लोडिंग दिस डेटा। ठीक है, आई डोंट नो इफ देयर इज अ रिलेशनशिप अमंग दिस, ऑटोमेटिकली वो करता है नहीं करता है, लेट्स सी। ओके, लेट मी जस्ट क्लिक ओके। अभी डेटा लोड कर रहा है इन योर पावर क्वेरी। ठीक है। सो डायरेक्टली इट्स गेटिंग लोडेड। सो पहले पावर सॉरी रिपोर्ट व्यू जाने से पहले लेट्स गिव अ क्विक ओवरलुक। हमें ये फैक्ट टेबल है जहाँ पर हमारे सारे फैक्ट के इन्फॉर्मेशन है, ऑल योर न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज फैक्ट टेबल के अंदर सारे न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन होते हैं। करेक्ट। सो दिस इज योर, यस जयश्री, वेरी गुड। ओके, सो डायमेंशन का मतलब है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैक्ट। ओके, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट योर न्यूमेरिकल वैल्यू। As a total amount is giving the information about who is the customer, what is the order, what is the product, in which date, right? ये सारे आपके आईडीज हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फैक्ट टेबल के अंदर बहुत सारे आईडीज होते हैं, एंड ओनली द फैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं लाइक दिस योर फैक्ट, क्वांटिटी इज योर फैक्ट, टोटल अमाउंट इज ऑल्सो योर फैक्ट। दिस योर डायमेंशन विच इज टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट, राइट। जैसे हमारे कस्टमर आईडी है, दिस इज ए प्राइमरी की, कस्टमर के नाम्स, करेक्ट। डेट, ओके, सो डेट के अंदर देख सकते हो, आई थिंक डेट के अंदर कॉलम का नाम गलत ले लिया है, सो लेट मी जस्ट गो एंड अपडेट दैट। सो अब इसी के अंदर कॉलम का नाम से एग्जैक्ट डाल देना। ओके, इफ यू गो टू द लास्ट शीट, इसके अंदर मैंने एग्जैक्ट कॉलम के नाम दिया है, सो विल ट्राई टू पुट द दोज नेम्स। सो हाँ, डेटा मॉडलिंग के अंदर डेट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो, दिस योर डेट प्राइमरी की। लेट मी कॉपी दिस, इसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो राइट डबल क्लिक, दिस इज योर column name, date, and next is full date, full date. This is your full date. ठीक है, सो आई हैव जस्ट रीनेम्ड इट, ए भी सही है, एंड डेटा टाइप्स भी आई थिंक सही है, डेट टाइप एंड ए बी सी डी, एंड दिस योर डिम प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट, प्रॉफिट आईडी एंड द प्रोडक्ट नेम, ये सारा सही है। व्हाट आई डू इज आई क्लिक ऑन लो क्लोज एंड अप्लाई। सो जैसे इसमें क्लोज एंड अप्लाई कर रहा हूँ, सो नाउ ऑल दैट पर्टिकुलर टेबल्स गेट लोडेड इनटू योर रिपोर्ट व्यू। करेक्ट, आप इधर भी देख सकते हो, सो ऑल योर डेटा गेट्स लोडेड। हाँ, सो राइट नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज गेटिंग लोडेड।
ठीक है. So you can see all the data get loaded and even you can see the data also. हाँ, सी डिम कस्टमर डिम प्रोडक्ट. ये होगा रिपोर्ट व्यू. डेटा व्यू के अंदर सारे टेबल्स देख सकते हो. सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मॉडल व्यू. सो अब हम मॉडलिंग करेंगे बिकॉज यू कैन सी ऑटोमेटिकली इट हैज बिल्ड द रिलेशनशिप. ओके, सी हियर. सो नाउ यू कैन सी द रिलेशनशिप. सो जहां पर आप वन देख रहे हो उसका मतलब क्या है, उस टेबल के अंदर सिर्फ एक ही यूनिक हो सकता है. जहां पर आप मेनी देख रहे हो इसका मतलब है दे कुड बी अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर टेबल. ओके, सो बाय डिफॉल्ट मैं फैक्ट सेंटर में रखता हूं. सो दिस इज वन काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ स्कीमा डिजाइन इज दिस. स्नोफ्लेक स्कीमा और स्टार स्कीमा. सी ये भी मैंने ऑलरेडी ईटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है. इफ यू आर अटेंडिंग रेगुलरली आई थिंक यू शुड बी एबल. हाँ, एक कौन सा स्कीमा है, स्टार स्कीमा. करेक्ट, स्टार स्कीमा. हाँ, गुड. सो दिस इज योर स्टार स्कीमा. एक ये आपका सेंटर है, दिस इज योर फैक्ट. ये सारे आपके डायमेंशंस हैं. करेक्ट, ये सारे आपके डायमेंशंस हैं. सो इफ आई वांट टू जस्ट समराइज दैट पार्ट, सो हियर आई हैव ऑलरेडी आई थिंक मैंने पेश किया है फॉर एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज योर टू टाइप्स ऑफ डिजाइंस. वन इज योर स्टार स्कीमा एंड वन इज योर स्नोफ्लेक स्कीमा. पहले आप डिफरेंसेस देख लो. सो डायमेंड फैक्ट क्या बोलता है, सो फैक्ट विल एक्चुअली टॉक अबाउट योर बिजनेस मेन केपीआई, राइट, या बिजनेस वैल्यू, राइट. जैसे पर्पज इज बिजनेस इवेंट्स या द बिजनेस वैल्यू स्टोर करता है, लाइक प्रॉफिट, सेल्स, क्वांटिटी, द मेन बिजनेस वैल्यू जहां पर की इंडिकेटर है सम न्यूमेरिकल वैल्यू का. ठीक है, एंड दिस इज न्यूमेरिकल, मोस्टली इट इज ए न्यूमेरिकल ओनली. एंड इसके अंदर बहुत सारे फॉरेन कीज होते हैं बिकॉज इट इज रिलेशन टू सम अदर टेबल्स. एंड एग्जाम्पल जैसे सेल्स हो गया, ऑर्डर हो गया, रेवेन्यू हो गया, दिस इज योर फैक्ट टेबल. डायमेंशन क्या करता है, डायमेंशन डिस्क्राइब्स दैट पर्टिकुलर फैक्ट. जैसे वी हैव ए सेल ऑफ 50, ये आपका फैक्ट हो गया. ये 50 का जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन है, मतलब कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट का नेम, राइट, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, कब खरीदा है, डेट का इन्फॉर्मेशन. सो ये सारे आपको बोल सकते हैं, ये सारे ये आपके डायमेंशंस हैं. सो इट्स योर टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन. ओके, इसके अंदर सारे सरोगेट कीज या फॉरेन कीज होते हैं. करेक्ट. एंड एग्जाम्पल जैसे कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स. तो ये आप जो आप डिजाइन बना रहे हो, आप दो तरीके के डिजाइन बनाते हो. बेसिकली वी हैव थ्री, बट लेट मी जस्ट टेल फर्स्ट टू. सो अभी तक मैंने सिर्फ दो ही बोला है. फर्स्ट इज योर see this is an example fact table and all your dimensions. So इसमें दो तरीके की डिजाइन होते हैं. one is your star schema and one is your snowflake schema. So इसमें डिफरेंस क्या है, so star schema के अंदर आपका एक सेंटर फैक्ट टेबल होता है and all this particular dimensions are connected to that particular fact table. Correct, all your fact table. तो आप इधर देख सकते हो there is no dimensions connected with each other. अगर वो connected है then it is snowflake schema. So this is your fact table. अब इधर देख सकते हो we have some dealer dimension. A dealer dimension is connected to some other two dimensions. One is your location dimension, country dimension. It's like a nested, right? So आपके दूसरे जो dimensions है दूसरे dimensions के लिए connected है. अगर आपका इस तरीके का एक structure दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है this is your snowflake schema. अगर आपका इस तरीके का structure दिखाई दे रहा है जहां पर एक डायमेंशन कोई अदर डायमेंशन के लिए कनेक्टेड नहीं है, जैसे दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस पार्ट, राइट. सो इसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा. सो देर इज थर्ड वन कॉल्ड गैलेक्सी. गैलेक्सी का मतलब क्या है, सो आपका आपका दूसरा और एक फैक्ट भी होता है, ठीक है, और एक फैक्ट होता है. एंड दिस फैक्ट विल ऑल्सो शेयर द सेम डायमेंशन. ओके, सो इसमें एक कंडीशन क्या है, ये दोनों फैक्ट कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है. सो द टू फैक्ट्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, बट वी हैव टू डिफरेंट फैक्ट्स एंड और एक फैक्ट इज कनेक्टेड टू सेम डायमेंशन. इसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, बट जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज. पॉपुलरली वी हैव स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा. दीज आर द टू पॉपुलर स्कीमास वी हैव. तो आप जो इधर देख रहे हो, जो हमने अभी लोड किया है, कैन सी जैसे हमने डेटा को लोड किया, ऑटोमेटिक हमने नहीं बनाया लेकिन ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर और पावर बीआई अंडरस्टूड दैट दिस इज योर स्टार स्कीमा. ये कैसे आइडेंटिफाई किया है, बेस्ड ऑन द कॉलम नेम्स. ओके, सो कई बार ये मिस्टेक भी होता है बिकॉज अगर आप दूसरे कॉलम्स का मेंशन किया है फॉर द सेम डेटा, कई बार ऑटोमेशन नहीं लेता है, तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज योर स्टार स्कीमा नाउ. तो आप जब जब आप एक रिलेशन पे होवर करोगे, आप देख सकते हो जैसे मैंने दो कंडीशन बताया. वन कंडीशन इज योर कॉमन कॉलम एंड सेकंड कंडीशन इज योर कार्डिनैलिटी. अब इसका कार्डिनैलिटी क्या है, वन टू मेनी कार्डिनैलिटी है, और इसका कॉमन कॉलम है कस्टमर फैक्ट. इसका मीनिंग क्या है, तो कस्टमर एक ही हो सकता है बिकॉज इस कस्टमर के अंदर एक यूनिक कस्टमर हो सकता है और ये मल्टीपल ऑर्डर्स कर सकता है, राइट. सो इसलिए मेनी, सो वन टू मेनी. नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड द फैक्ट, इसका वन टू वन रिलेशन है. सी कार्डिनैलिटी इसका वन टू वन है. वाई वन टू वन, डिम प्रोडक्ट के अंदर यूनिक प्रोडक्ट होता है
एंड जब ये प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, सो आई थिंक ही कैन बाय ये मल्टीपल प्रोडक्ट। सो हम इसको अगर मुझे चेंज करना है, लाइक मुझे इसको वन टू मेनी बनाना है, तो आप इसको एडिट कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक दिस एंड यू कैन सी देयर इज समथिंग कॉल्ड मैनेज रिलेशनशिप। सी बिफोर अगर आप इसको क्लिक नहीं किया है तो ये डिसेबल्ड रहता है कई बार, ठीक है, अनलेस अगर आपका प्रॉपर एक डिजाइन नहीं है तो ये डिसेबल्ड होता है। सो जैसे ये प्रॉपरली एक सेट हो गया, देन यू कैन सी दी व्हाट इज अ कॉमन कॉलम एंड आप इसको मैनेज कर सकते हो यूजिंग दिस मैनेज रिलेशनशिप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे मैनेज रिलेशनशिप, आपका एक नया विंडो ओपन होगा जहां पर आप हर एक कॉलम का एक रिलेशनशिप डिसाइड कर सकते हो। यू कैन सी लाइक सो डिम और फैक्ट का है वन टू मेनी, अगर आपको चेंज करना है जस्ट सेलेक्टेड, इसको आप आई थिंक हाँ एडिट करना पड़ेगा। सो क्लिक ऑन एडिट एंड इस पे आप एडिट कर सकते हो। यू कैन टेल लाइक आई वांट वन टू मेनी। सी पहला आपको कॉमन कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर आप बोलोगे लाइक कौन सा कार्डिनलिटी चाहिए, कौन सा टाइप ऑफ रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। सो आई वांट वन टू मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, बेस्ड ऑन लाइक जैसा आपका डेटा है उसके हिसाब से यू कैन एक्चुअली चूज इज कार्डिनलिटी। एंड यू कैन सी फिल्टरिंग का ऑप्शन भी दिया है, अगर आपको फिल्टर करना है बोथ वे से, सो दिस व्हाट द बाय डिफॉल्ट चेक इज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कार्डिनलिटी। या वर्मा, व्हाट डू यू डिडंट अंडरस्टैंड, लेट मी नो, ठीक है। दिस इज समथिंग ईटीएल से आ रहा है, सो इफ यू नॉट अटेंडेड ईटीएल क्लास नॉट अंडरस्टैंड। से अगर आपने ईटीएल क्लास को अटेंड नहीं किया है, सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। फाइन, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉडलिंग, ठीक है। सो दिस योर स्टार स्कीमा। सो आप कोई भी रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने ब्रेक कर दिया, ओके, एज्यूम लाइक आई वांट टू डिलीट दिस, अभी नहीं था, ओके, आई मैन्युअली डिलीटेड, ठीक है, आई डिलीट दिस। अब मुझे इसको बनाना है, ठीक है, व्हाट आई डू इज अब ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है, सो यू कैन सी ड्रैग एंड प्लेस इट। अगर आपको बनाना है ड्रैग एंड ड्रॉप, सी ऑटोमेटिकली जैसे आप ड्रैग करोगे, सो यू कैन एक्चुअली व्हाट ये ऑटोमेटिकली दिखाई देगा एंड यू कैन टेल लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वांट टू बिल्ड इट एंड क्लिक सेव। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप और द मॉडलिंग इन योर पावर बीआई, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वे। या आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो मैनेज, फॉर एग्जांपल ये सारा नहीं था, अज्यूम लाइक दिस इज नॉट देयर, आई विल कैंसिल दिस वंस अगेन। तो आप बोलोगे लाइक मैनेज रिलेशनशिप, तो आप डिम कस्टमर और फैक्ट के बीच में बनाना है, तो आप बोलोगे ऐड ए न्यू रिलेशनशिप। ये मैनुअल प्रोसेस है, ठीक है, ऐड ए न्यू रिलेशनशिप। अब बोलोगे कौन सा टेबल, ठीक है, मुझे पहला टेबल लेना है डिम कस्टमर का और दूसरा टेबल लेना है फैक्ट का। और आप बोल सकते हैं ऑटोमेटिकली गेट सेलेक्टेड। कई बार ऑटोमेशन में नहीं हो रहा है, अगर क्यों हो रहा है ऑटोमेशन में, बिकॉज ये सारा कॉलम का नेम सेम है। अगर कई बार नेम सेम नहीं हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिक जस्ट क्लिक, ठीक है, आफ्टर दिस देन क्लिक ऑन सेव। अब देखो फिर वो रिलेशनशिप बन जाएगा। सो देयर टू डिफरेंट वेज, आप ड्रैग एंड ड्रॉप से ज्वाइन कर सकते हो या गो टू योर मैनेज रिलेशनशिप एंड डू दी रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट अ मॉडलिंग पार्ट। मॉडलिंग पार्ट का एक ही टैब है कि मैनेज रिलेशनशिप, एंड जिस तरीके से आप रिलेशनशिप मैनेज करोगे, सो इसी तरह आपके विजुअल्स भी काम करेंगे। अगर सोचो अगर आप दो डिफरेंट टेबल से लेके आ रहे हो, यू आर गेटिंग अ डेटा फ्रॉम कस्टमर्स एंड फैक्ट। सो जब आप दो चीजों से दो अलग अलग टेबल से एक विजुअल बना रहे हो, तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए। अगर वो बिल्ड नहीं है देन यू कांट गेट इट, ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइंड करना है कि हर एक कस्टमर का कितने सेल्स है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसको मैं डिलीट, ओके, राइट नाउ इट्स देयर, राइट, आई विल गो हियर, ठीक है, आई विल गो टू द रिपोर्ट व्यू नाउ। अब इधर सारी चीजें देख सकते हो। तो पहले मैं ओपन करूंगा कस्टमर का, फिर मैं ओपन करूंगा एक फैक्ट टेबल का। सो मुझे फाइंड करना है कि हर एक कस्टमर ने कितना सेल करा है। सी अब मैं दो चीजों से ड्रैग कर रहा हूँ। सो वन इज योर कस्टमर एंड अदर इज योर टोटल अमाउंट। सी ये दो अलग अलग कॉलम्स अलग अलग चीजों से आ रहे हैं, अलग अलग टेबल से आ रहा है। अब इसका मैं चार्ट बना सकता हूँ या इसका मैं बार ग्राफ बनाता हूँ। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बन के आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। अगर वो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं है इट विल नॉट शो अप। कैन आई शो नाउ, आई विल गो एंड ब्रेक दैट रिलेशनशिप, नाउ आई विल गो हियर, ठीक है। सो आई विल गो टू माय मॉडल व्यू एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आई डोंट वांट दिस फॉर सम रीजन, ओके, आई विल जस्ट कैंसिल दिस, ओके। सो जैसे इस पे हम कैंसिल करेंगे, नाउ इट विल ट्रीट दिस एज ए टू इंडिविजुअल ग्राफ्स, ओके। सी अब रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है, इट हैज गिविंग अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इंपोर्ट व्यू, आपके सारा इंटर कनेक्टेड है। तो आपके जो विजुअल्स बना रहे हैं सारा आपके मॉडल लेयर पे जाता है, ठीक है, और मॉडल लेयर पे आपने कैसे मॉडल किया है उसके हिसाब से आप क्वेरी करते हो आपके रिसोर्सेज के अंदर, आपके डेटा सोर्स के अंदर, करेक्ट। सो ऑल दिस आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर। आई थिंक जब हमने सेशन स्टार्ट किया, नाउ वी कैन कनेक्ट विद दोज पर्टिकुलर टॉपिक्स, आपका विजुअल लेयर, आपका मॉडल लेयर एंड आपका डेटा लेयर, ये साथ एक साथ काम करता है। इसमें कोई भी एक चीज भी ब्रेक हो गया ना, सो यू कैन सी दिस व्हाट यू विल गेट अ रॉन्ग विजुअल्स। तो आपको नहीं पता चलेगा देयर इज नो रिलेशनशिप, तो आप सोचोगे दिस आर करेक्ट, नो दिस इज रॉन्ग, राइट। सो यू नीड टू हैव द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू पर्टिकुलर tables, then you'll get a for each and every customer what is a fact, so you can build a relationship like this, okay। अब जैसे आप इस पे बिल्ड करोगे, so now the chart will automatically gets updated, आप जाके देखो, okay।
So now see, automatic gets updated. So आप बोल सकते हैं कि which customer has purchased what kind of like what is the total amount for each and every customer. अंडरस्टैंडिंग इसमें कई से इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए आप चार्ट्स पढ़ने से पहले सारे प्री रिक्विजिट्स आप डायरेक्टली आप सोच रहे हो सर हम कब करेंगे, वील डू इट ओके, थोड़ा अच्छा लगेगा बिकॉज बिल्डिंग अ चार्ट, बट इसको बनाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होना है, राइट, ऑल दिस रिलेशनशिप। और आपको सकीला से डेटा लेके आ रहे हो एंड आप दो अलग अलग टेबल से मेट्रिसेस निकाल रहे हो, लेकिन अगर वो कनेक्टेड नहीं है, वी डोंट हैव बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन दिस, देन इट विल नॉट शो अप। तो इसलिए आपको यू शुड नो लाइक हाउ दिस मॉडलिंग इज एक्चुअली वर्किंग एंड व्हाट इज दिस, हाउ दिस विजुअल्स आर बीइंग आर क्रिएटेड। यस, ठीक है। सो वर्मा ने बताया, तानिश वर्मा, शी इज नॉट डिडंट अंडरस्टूड दी स्टार एंड स्नोफ्लेक। आई जस्ट समराइज, जिन लोगों ने ईटेल नहीं अटेंड किया, फॉर देम लाइक आई थिंक लाइक आई हैव ए क्विक information like what is this right. So जब भी आप डेटा में डील कर रहे हो, राइट, सो whenever you're dealing with data, so आपका डेटा, डेटा में बोल रहा हूँ, डेटा बहुत सारे टेबल्स होता है, करेक्ट, बहुत सारे टेबल्स। ओके, सो रॉ डेटा एंड उस रॉ डेटा को आप ट्रांसफॉर्म डेटा बनाओगे, और जब आप बनाते हो इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो आप डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रखोगे, ठीक है। आपका एक फैक्ट टेबल रहेगा जो आपका बिजनेस वैल्यू बोलेगा। उस बिजनेस वैल्यू में क्या रहेगा, आइदर सेल्स, न्यूमेरिकल डेटा, जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है, सेल्स का कॉलम या ऑर्डर्स का कॉलम या रेवेन्यू का कॉलम, तो हम वो सेंट्रल में प्लेस करते हैं। सेंट्रल वैल्यू मीन्स योर फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या है, जो है, राइट, फैक्ट। इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए जो भी मुझे डायमेंशंस चाहिए, डायमेंशंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसे एग्जांपल लिखा, आई गॉट 50 रुपीज, तो 50 रुपीज विल बी देयर इन योर फैक्ट टेबल। अब इस 50 रुपीज का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे कौन सा कस्टमर ने खरीदा है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कब खरीदा है, कैसे पेमेंट किया है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहां पर होता है, डायमेंशन टेबल में होता है। जब आप इसको सी व्हेन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सीक्वल कोड, जब आप सीक्वल कोड लिखोगे, व्हाट काइंड ऑफ यू गोना यूज इट, जॉइंस, करेक्ट। अगर आपको फैक्ट टेबल से या डायमेंशन टेबल से कोई चीज लेके आना है, राइट द जॉइंस हियर, या आप सीटीज लिखोगे, सीटी से आप डेटा लेके आओगे, डू सम ट्रांसफॉर्मेशन, देन राइट इट। तो इसी तरह, सो दिस योर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट एंड डायमेंशन इज, ओके, इसलिए वी हैव रिटन सम एग्जांपल्स। तो उसी तरह, सो इन आवर एग्जांपल दिस इज योर फैक्ट, राइट। सो जैसे मैंने पावर जो हमने डेटा को लोड किया है, सो दिस योर फैक्ट, एक फैक्ट में सारे क्वांटिटी है, टोटल अमाउंट है, मेरा एक्चुअल वैल्यू, बिजनेस वैल्यूज जो मैं फाइंड कर रहा हूँ। इसके जो भी सपोर्टिंग डिस्क्रिप्टिव नेचर है, कौन सा कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट है, कब खरीदा है, राइट, ये सारे इंफॉर्मेशन डायमेंशंस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो जब मैं कोई भी एक चार्ट बना रहा हूँ, आई एम बिल्डिंग अ चार्ट फ्रॉम टू डिफरेंट टेबल्स, तो ये काम करने के लिए इसके अंदर रिलेशनशिप होना जरूरी है। ओके, वो रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, इन दिस मॉडल व्यू। विल कम टू मॉडल व्यू। आप मैनुअली रिलेशनशिप बनाओ, या आप जाके मैनेज रिलेशनशिप क्लिक करो एंड आप मैनुअली न्यू रिलेशनशिप बना सकते हो। और वो बनाने के लिए आपको कॉलम कॉलम कॉमन कॉलम चाहिए बेस्ड ऑन कॉमन डेटा, एंड आप कार्डिनलिटी बता सकते हो, 1 to 1, उसका मतलब है यूनिक यूनिक होना चाहिए दोनों टेबल्स में। 1 to many, मैनी का मतलब है डुप्लीकेट हो सकते हैं जो हमने कॉमन कॉलम्स को सेलेक्ट किया है, राइट। सो दिस इज व्हाट द रिलेशनशिप इज, ठीक है। सो इस रिलेशनशिप के हिसाब से वो सारा डेटा फिल्टर होके आपको अप्रोप्रिएट आंसर देता है। जब आप कोई भी विजुअल बनाते हो, कोई भी एनालिटिक्स बनाते हो, तो इट्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर मॉडल लेयर, ठीक है। हाँ यार, नो, या दिस इज ऑटोमेटिकली गेट्स क्रिएटेड, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। सो कई बार ऐसे होता है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता है, सो उसके प्लेसेस पे आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सो वी हैव टू ऑप्शंस, ऑटोमेटिकली होता है, सी दिस ऑल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, और आपको मैनुअली करना है, दिस व्हाट द मैनेज रिलेशनशिप एंड गो एंड डू इट, ठीक है। सो दिस इज योर मॉडलिंग, ओके। सो नाउ इफ यू गो एंड चेक दी स्लाइड, सो इसमें क्या बता रहे हैं, सो ऑफ कोर्स वी हैव द फॉरेन कीज, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमको पता है। सो व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ data modeling? We have the fact table which stores the actual business value or transactional data, always numerical value, and dimension store descriptive data, customers, products, date। और फैक्ट टेबल के अंदर सारे हमारे कीज होते हैं जनरली, एंड एक कॉलम होता है जहां पर हमारा बिजनेस वैल्यू है एंड रिलेशनशिप, राइट। सो वी नो लाइक दिस आर द कंपोनेंट्स। सो सी मैनेज रिलेशनशिप, आप इस पर क्लिक करो एंड यू कैन सी द सेम स्टेप्स हियर, राइट। वी हैव टेबल्स, आप ये सारे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कैन सी वी हैव 1 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी, ओके, दिस आर द डिफरेंट रिलेशनशिप कैन हैव। सो ऑलरेडी हमको ये पता है स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लिक स्कीमा, सो हाउ दिस स्कीमाज आर एक्चुअली बिल्ड, करेक्ट। एंड स्नोफ्लिक स्कीमा सेंटर में होता है, सारे आपके डायमेंशन जो है एक साथ से कनेक्टेड होते हैं, और आपका डायमेंशन दूसरे डायमेंशन को कनेक्टेड है, इसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। अगर आपका एक ही डायमेंशन सिर्फ फैक्ट टेबल से कनेक्टेड, इसको हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। दैट्स इट, एक कॉन्सेप्चुअल है, दैट्स इट, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हर हमेशा हम स्टार स्कीमा को ही प्रिफर करते हैं, बिकॉज एनालिटिक्स के लिए इट विल improve द परफॉर्मेंस,
एंड इट सिंप्लीफाई द एनालिसिस। तो इसलिए जब आप मॉडलिंग कर रहे हो, अगर आप कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप पूछेंगे सर आप बताओ बिकॉज यू आर वर्किंग इन एनालिटिक्स फील्ड, कौन सा बेस्ट प्रैक्टिसेस है, देन यू कैन टेल स्टार स्कीमा इज मोर बेटर। ठीक है। फैक्ट टेबल्स, ठीक है। सो फैक्ट टेबल्स थोड़ा स्लिम होना चाहिए, बिकॉज आपका फैक्ट टेबल विल हैव ए कोर बिजनेस वैल्यू और उसके जो भी कनेक्शंस होंगे, सो फैक्ट टेबल आपको स्लिम रखना चाहिए, बिकॉज नॉट दैट यू हैव सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ प्राइमरी कीज एंड सो मेनी थिंग्स, आपको नहीं करना है। ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। सो कीप द फैक्ट टेबल स्लिम, सो स्टोर ओनली द न्यूमेरिक मेजर्स एंड कीज एंड अवॉइड द डिस्क्रिप्टिव टेक्सुअल कॉलम्स, में हम कोई भी टेक्सुअल कॉलम मत रखना, दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग। यूज प्रॉपर कीज, ठीक है। एंड प्रीफर वन टू मेनी, मतलब हर हमेशा वन टू मेनी पे रखो। ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, नॉर्मल वन टू मेनी। एक कॉलम हो सक एक डायमेंशन होता है जहां पर एक यूनिक डेटा होता है, एंड मेनी का मतलब है फैक्ट के अंदर मेनी हो सकता है, राइट। सो दिस योर वन टू मेनी रिलेशनशिप। एंड यूज अ सिंगल डायरेक्शन फिल्टरिंग, ओके। सो एक डायरेक्शन से अगर आपको फिल्टर करना है, सो जैसे जब आप फिल्टर लगाओगे, सो आप बोल सकते हो कि फिल्टर के से लगाना है, जो दोनों प्लेस से फिल्टर लगाना है या एक से फिल्टर लगाना है। सो दैट टेलिंग जस्ट गो विथ वन सिंगल साइड फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। सो दिस इज योर बेस्ट प्रैक्टिसेस विच यू नीड टू फॉलो फॉर योर मॉडलिंग। ठीक है। सो आई जस्ट गिव 5-10 मिनट्स, अगर आपको इस टॉपिक्स के हिसाब से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है फ्रॉम योर डे 1 एंड डे 2, और वॉट एवर द डाउट यू हैव, ओके, सो फार, बिकॉज जब आगे हम प्रोसीड करेंगे लर्न मोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स, तो उसके लिए दिस थिंग्स इज मस्ट, ओके। सो लाइक गेटिंग अ डेटा, व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज डायरेक्ट क्वेरी, व्हाट इज अ टेबल व्यू, राइट, इसके अंदर जो जो सेक्शंस हैं, देन व्हाट इज अ टेबल व्यू, व्हाट इज योर मॉडल व्यू, एंड मोर इंपॉर्टेंटली पावर क्वेरी एडिटर, ओके। अगर आपको पावर क्वेरी एडिटर जाने कि हाउ विल गो इट फ्रॉम योर ट्रांसफॉर्म डेटा, सो जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा क्लिक करोगे इट विल गो योर पावर क्वेरी एडिटर। अब इधर कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, हर एक स्टेप्स आप रिकॉर्ड करते हो अप्लाइड स्टेप्स के अंदर। सो दिस इज द कॉमन थिंग्स इन योर डे 1 एंड डे 2। सो अगर आपको अच्छी तरीके से पता है, देन द फ्यूचर डैशबोर्ड बिल्डिंग या जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, सो टू लर्न द पावर बी आई विल अंडरस्टैंड स्मूथली। ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। So if you don't have, then I can teach you something which is beyond not there in your current today's syllabus. फैक्ट टेबल, हाँ, मास्टर टेबल, हाँ, यू अश्विनी, हाँ, यू कैन टेल मास्टर टेबल। सी जब आप जाके सर्च करोगे, सी फॉर एग्जांपल इफ यू गो एंड सर्च समवेयर, आई विल से लाइक फैक्ट टेबल, ओके। सो फैक्ट टेबल, या आई विल से हियर स्टार स्कीमा। सो आप जस्ट एग्जांपल्स देखो, ठीक है, स्टार स्कीमा। सो हर हमेशा आपके स्टार स्कीमा के अंदर सिर्फ बिजनेस वैल्यू होता है। जब मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज बिजनेस वैल्यू, टोटल सेल्स, ओके। स्टार स्टार स्कीमा, ठीक है। क्या आ रहा है स्टार, सी आई ओपन वन, ओके। अभी सेल्स देखो, ये सेल्स योर स्टार स्कीमा। अब इसमें बिजनेस वैल्यू कौन सा है, टोटल है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैं इसको क्यों बिजनेस वैल्यू बोल रहा हूं, बिकॉज फैक्ट के अंदर आप ऐसी चीजें रखोगे विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू मेक अ डिसीजन फॉर योर बिजनेस, और ये जनरली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। सो दो कंडीशंस, हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और कोर बिजनेस वैल्यू होता है, इसको हम बोलते हैं फैक्ट। जैसे मैंने बोल रहा, राइट, सो इफ यू हैव ए 50 रुपीज, वो 50 रुपीज योर फैक्ट, ओके। एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज 50 रुपीज से आपको क्या पता चलेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा इसने किसने खरीदा है, प्रोडक्ट का टेबल, किसने खरीदा, न्यूमेरिकल, सॉरी, कस्टमर का इंफॉर्मेशन, ये सारा आपका एक डायमेंशन है, ये एक अलग डायमेंशन है। कौन सा खरीदा है, प्रोडक्ट का अलग डायमेंशन है, कब खरीदा है, डेट का डायमेंशन है, ठीक है। मतलब पेमेंट मोड क्या है, ये अलग पेमेंट का अलग टेबल है। सो ये आपको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन दे रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर 50 रुपीज। तो दिस इज योर डायमेंशन, दिस योर फैक्ट। तो जब आप ये डिजाइनिंग कर रहे हो, राइट, अगर आपका एक डायमेंशन इज नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, इसको हम बोलते हैं स्टार। अगर वो कनेक्टेड है दूसरे डायमेंशन के साथ भी, इसको हम बोलते हैं स्नोफ्लैक। दैट्स इट। तो आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, सो फैक्ट टेबल के अंदर बिजनेस वैल्यू होता है, जैसे अमाउंट, क्वांटिटी, और इसके साथ साथ आईडीज होते हैं, भाई, बिकॉज हम इसको रिलेशनशिप बना रहे हैं, राइट। हमको ऑफकोर्स फॉरेन कीज, प्राइमरी कीज की जरूरत पड़ती है। सो फैक्ट टेबल के अंदर इट्स लाइक अ मास्टर टेबल जहां पर बहुत सारे टेबल्स को कनेक्टेड है, तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारे व्हाट प्राइमरी कीज या फॉरेन कीज हो सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सी दिस, ठीक है। Fact table is always available, not kind of always available. When you design it, yeah, fact table will be there, okay. This is something which will design it, and सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, सी रियल वर्ल्ड में आपको ये सारा डिटेल से नहीं, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप फैक्ट टेबल बनाओ, ये नहीं बनाओ, बहुत रेयर है, बिकॉज ये सारा डेटा इंजीनियरिंग टीम या द टीम विच इज सेटिंग इन योर डेटा पाइपलाइन, उनको रिक्वायरमेंट ऑलरेडी जाता है कि लाइक हाउ व्हाट इज एनालिटिक्स टीम इज लुकिंग फॉर द डेटा, ठीक है, मतलब किस तरीके का डेटा दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इन योर रिपोर्टिंग। तो उनके पास एक ऑलरेडी एक बेसिक आइडिया होता है, सो दे गोना सेंड यू द डेटा इन द सेम फॉर्मेट।
इट्स वेरी रेयर सिचुएशन जहाँ पर आपको खुद से सारी चीज़ें बनाने पड़ेंगे, बट अच्छे अच्छे कंपनीज या दे विल नॉट टेल यू टू डू एवरीथिंग, सारा आपको नहीं बनाना पड़ेगा. सो यू शुड नो द कॉन्सेप्चुअली लाइक व्हाट इज स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, राइट. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक व्हेन यू आर इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तो आपको ये पता होने के लिए व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स इज, राइट. सवर पावर के एडिटर में वी हैड मेड ए कैटेगरी टेबल जिसमें टोटल ऑर्डर्स हैं. अगर दोनों का सेपरेट टेबल बनाना है, हाँ, सो अगर आपको दोनों सेपरेट टेबल बनाना है तो आपको क्लिक करना है ऐड कॉलम. तो अब आप जाओगे ऐड कॉलम, एंड ऐड कॉलम में बोलोगे लाइक आई वांट टू व्हाट, जो आप करना चाहते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट के मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे दिस इज योर टेक्सटल डेटा, राइट. मुझे इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है लास्ट 3 कैरेक्टर्स. अभी इसमें एडिट नहीं करेगा, अगर आप ट्रांसफॉर्म में करके कर रहे हो तो एडिट हो जाएगा, तो मुझे इसके साथ साथ चाहिए. आई गो टू ऐड कॉलम, आई गो टू व्हाट एक्सट्रैक्ट. सो मुझे फर्स्ट लेंथ, लास्ट कैरेक्टर्स, लास्ट के 3 चाहिए, सो आई से हियर लास्ट 3. हाँ, काउंट लास्ट 3 चाहिए. आई क्लिक ओके, से अब लास्ट 3 मिल गए मुझे, सी आई गॉट इट. तो इसको मैं रीनेम कर सकता हूँ. ओके, और इसके साथ आई हैव द ओल्डर कॉलम ऑल्सो. तो अगर आपको ओल्डर कॉलम नहीं चाहिए तो डायरेक्टली आप ट्रांसफॉर्म क्लिक करके आप कर सकते हो. ओके, दैट्स दिस व्हाट यू आर आस्किंग, राइट. ठीक है. एनी अदर डाउट्स? नो. अगर नहीं है तो आई टीच समथिंग विच इज एक्स्ट्रा. ओके, सेपरेट जहाँ फैक्ट, if you use only one table for visualization and that time model is breaking, that time the chart will go, yeah, Varma, so that time it will give the wrong visualization. So you should be very careful in that modeling, because modeling is something which is getting a data, correct. So जब आपका modeling ही गलत है, so of course आपके matrices भी गलत होंगे, right. So yeah, what you said is correct, हाँ. If there is extra space in extracting extra space, trim option है, so you can go to your transform. आप इधर देख सकते हो फॉर्मेट के अंदर ट्रिम का ऑप्शन है, राहुल. ट्रिम का ऑप्शन है. सो आई इंडिविजुअली आई ऑल्सो टेल, बिकॉज सारी चीज़ एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है. सो जितना हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्राई टू प्रैक्टिस दैट सेम थिंग. इंडिविजुअल से भी आई गिव अ ओवरव्यू ऑफ दिस, ठीक है. बट बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास, प्लीज एटलीस्ट यू शुड हैव अ हैंड्स ऑन, लाइक ये सारी चीज़ें यू शुड डू इट. जब आप नहीं करोगे यू नॉट अंडरस्टैंड. ओके, प्लीज डोंट वॉच इट even after the lecture, after live class, please in that weekdays you just open it, load some data, because already have some data, right. Try to make mistakes, okay, try to change this. Okay, this one you can do it. So न्यू क्रिएट टेबल नहीं हो, हाँ, न्यू टेबल जो आप क्रिएट कर सकते हो. सो यू कैन सी लाइक हियर यू हैव एन ऑप्शन ऑफ, आप न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो. हियर सी एंटर डेटा. सो मुझे आई टेल हियर एंटर डेटा. सो जैसे आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे आपको एक नया विंडो आएगा जहाँ पर आप खुद से एक नया टेबल बना सकते हो. सी, सो कैन टेल लाइक व्हाट इज अ कॉलम, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, क्लिक ऑन ओके, आप टेबल का नाम दो, फिर अब इधर डिस्प्ले करेगा. रेनो, दिस इज हाउ वी क्रिएट a न्यू टेबल. ठीक है, यस. एनी अदर क्वेश्चंस? If I use only one table for visualization, that time modeling, yeah, I told, right, Manishma, yeah. So visualization के लिए आपको you should be very careful about the modeling. अगर वो break कर रहा है तो, but I am using only one table for visual. If I use, this is how we create a new table. You can see like here you have an option of, आप new table create कर सकते हो. Here see enter data. So मुझे I'll tell here enter data. So जैसे आप enter data पे क्लिक करोगे आपको एक नया विंडो आएगा जहाँ पर आप खुद से एक नया टेबल बना सकते हो. सी, सो कैन टेल लाइक व्हाट इज अ कॉलम, जो जो चीज़ें आपको चाहिए, क्लिक ऑन ओके, आप टेबल का नाम दो, फिर अब इधर डिस्प्ले करेगा. रेनो, दिस इज हाउ वी क्रिएट a न्यू टेबल. ठीक है, यस. एनी अदर क्वेश्चंस? If I use only one table for visualization, that time modeling, yeah, I told, right, Manishma, yeah. So visualization के लिए आपको you should be very careful about the modeling. अगर वो break कर रहा है तो, but I am using only one table for visual. If I use only one table for visualization and that time my modeling is break, is that time my chart will give wrong? Yeah, it will give wrong information. If your modeling is breaking, Tanish Verma, it will give the wrong information. अगर आपका एक ही टेबल से आ रहा है then it will be proper. हाँ, या आलम, what doubt? सर मेरा लैपटॉप ऑटोमेटिक चल रहा, यूट्यूब भी ऑटोमेटिक ओपन होता जाता है, इसका व्हाट इशू? हाँ, वो आपका लैपटॉप का इशू है, तो आप थोड़ा मैं लैपटॉप ठीक नहीं कर सकता. सो जस्ट शट डाउन लाइक जो आपके अननेसरी जो एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, या स्पेस का कोई इशू होगा, अगर आपका रैम या
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं है, मतलब द लैपटॉप विच यू आर डीलिंग विथ, अगर प्रोसेसर अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स यू विल गेट ऑल सॉर्ट ऑफ इश्यूज। उसका क्या ही कर सकते हैं, यू नीड टू मैनेज। सर वाइट स्पेसेस क्या होता है, व्हाट इज, कहाँ पर है वाइट स्पेसेस? वाइट स्पेसेस, हाँ हियर राइट। कहाँ पर गया, व्यू के अंदर, दिस राइट इस पे, हाँ। डिस्प्ले प्रीव्यू कंटेन्स यूजिंग अ मोनो स्पेस्ड फॉन्ट, मतलब फॉन्ट के हिसाब से, जस्ट टेलिंग लाइक आपको डिस्प्ले करना है कोई फॉन्ट के हिसाब से, ओके आई डोंट नो, हाँ। दिस लाइक दिस, आप देख सकते हो राइट, बहुत लाइट हो गया, कैन सी इट्स गेटिंग लाइट राइट। सो मोनो स्पेस्ड है, तो कई लोग लाइक दे वांट टू हैव सम प्रॉपर विजुअल, कुछ आई साइड का इश्यूज हो सकता है, दे वांट टू सी द डेटा लाइक दिस इज एन ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, अगर आपको, आई थिंक लाइक दिस वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जब आप होवर करोगे राइट, सो आप इस पे रीड भी कर सकते हो लाइक अ हेल्प, जैसे शो वाइट स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स, ठीक है। जैसे इस पे जाओगे, कैन सी सम डॉट डिस्क्रिप्शन राइट, शो कॉलम क्वालिटी डिटेल्स इन, सो मतलब बेसिकली कोई भी अगर आप ऑप्शन पे होवर कर रहे हो, विल गेट सम सॉर्ट ऑफ एन हेल्प, ठीक है। सो आप उस पे होवर करो एंड जस्ट सी लाइक व्हाट दे आर टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड विच लैपटॉप इज बेस्ट, विच लैपटॉप इज नो, इफ यू हैव एनीथिंग विच इज कोर i7, आई सेवन के ऊपर, या i7 इट्स वेरी गुड। एनी लैपटॉप बट i7 मशीन लर्निंग, जनरेटिव एआई, ये सारी चीज़ों के लिए अगर सपोर्ट करना है, एनालिटिक्स एआई के लिए, सो i7 इज आई थिंक इट्स गुड। यस, ठीक है, एनी अदर डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस डाउट्स, हाँ। ठीक है, I'll show one example, okay, for append, okay, so then we can wrap it. So I have some data, I'll show like what is the actual requirement is. So assume like you have the data like this, okay, so आपके आपके फोल्डर के अंदर ऐसे बहुत सारे टेबल्स हैं, ओके, सो यू कैन सी, सो हियर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, जैसे वी हैव मंथली सेल्स, मतलब हर एक मंथ का सेल्स है, जैसे अप्रैल 2020 का सेल है, अगस्त का 2020 का सेल है, फेब का 2020 सेल है, और हर एक सीएसवी फाइल के अंदर आप देख सकते हो उस मंथ का सेल का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसको आप लोड करना है, ओके, सो आप मल्टीपल फाइल्स को भी लोड कर देते हो, सो यूजिंग समथिंग कॉल्ड अपेंड, आई शो हाउ टू डू दिस। सो व्हाट आई डू इज आई गो हियर एंड आई जस्ट, ये सारे चीज़ों का आई जस्ट डिलीट इट, ओके। आई एम शोइंग वन एग्जाम्पल जहाँ पर आप मल्टीपल सी एस वी फाइल्स, आप एक्सेल का भी कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम शोइंग यू दिस सी एस वी फाइल्स, सो आई जस्ट डिलीट दिस, ओके। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है, आई हैव द मल्टीपल सी एस वी फाइल जिसको मुझे लोड करना है, करेक्ट। सो आई गो हियर टू माई पावर बी आई एंड इफ आई क्लिक ऑन टू दिस गेट डेटा, सो हाँ, आई गो टू माई, इसको भी डिलीट कर देते हैं, हाँ। आई गो टू माई गेट डेटा, सो गेट डेटा सेक्शन के अंदर, हाँ, सो गेट डेटा सेक्शन के अंदर, सो यू गो टू मोर ऑप्शन एंड दिस टाइम आई वांट टू गेट द डेटा फ्रॉम वेयर, फोल्डर, तो आप फोल्डर से जितने भी आपके फाइल्स हैं आप लोड कर सकते हो, सी वी हैव फोल्डर, सो आप फोल्डर क्लिक करो एंड क्लिक ऑन कनेक्ट एंड जैसे आप क्लिक ऑन कनेक्ट बोलोगे, अब ये बोलेगा कि कहाँ पर है आपके सारे फाइल्स, ओके, सो आई नीड टू ब्राउज इट, सो आई क्लिक ऑन ब्राउज एंड आई गो टू माई पाथ, जहाँ पर मेरा पाथ है, आई गो टू दैट फोल्डर, कहाँ पर रखा है इसको,
How to save, because I'll tell. Okay, saving thoda मतलब थोड़ा conceptual है. Let's do some charts. Okay, then we'll have more clarity. I'll tell talk about the savings also. Power BI. ठीक है. So here I'll say Power BI. It's there in the, ठीक है, Power BI. And इसके अंदर we have append. और अब देख सकते हो वी हैव, दिस इज द फोल्डर वेर आई वांट टू लोड इट. ठीक है, मैंने फोल्डर का नाम दे दिया है जहाँ पर ये सारे फाइल्स हैं. तो जैसे आप इस पर ओके क्लिक करोगे अब ये सारे फाइल्स दिखाई देगा जहाँ पर आप बोलेगा कि इसको सारों को मैं ज्वाइन कर दूंगा. सी, सो फाइल नेम इज अप्रैल 2020. व्हाट इज बाइनरी? बाइनरी का मतलब है उसके अंदर जो कंटेंट है वो बाइनरी फॉर्मेट में है. ठीक है. सो अगस्त का फाइल है, फेब का फाइल है, जैन का फाइल है, जुलाई, जून, मार्च, मार्च. ठीक है, ये सारा आपका डेटा है. ये सारे अलग अलग फाइल्स हैं, इनको सारों को मुझे अपेंड करना है. ठीक है, इन वन सिंगल कॉलम. सी, अब आपको नया कॉलम दिख रहा है कंबाइन. ओके, अभी तक आप देख रहे थे लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा, फाइल. जब आप इस पर कंबाइन क्लिक करोगे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, कंबाइन एंड लोड. जैसे आप कंबाइन करके डायरेक्टली लोड कर दो या ट्रांसफॉर्म करो. लेट्स गो विद ट्रांसफॉर्म. सो क्लिक ऑन कंबाइन एंड लोड. अभी क्या करेगा, जितने भी हमारे फाइल्स थे सारों का इंफॉर्मेशन और फेच करके ये एक टेबल, सिंगल टेबल बनाएगा. वेर विल हैव, दिस इज मोर कॉमन सिनेरियो, राइट? तो जब आपका क्लाइंट देता है कि बहुत सारे फाइल्स हैं एंड यू वांट टू कंबाइन ऑल दोस पर्टिकुलर फाइल्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन ओके. ठीक है. सो सारा डेटा एक एक सिंगल मास्टर टेबल बन जाएगा. अनलेस, अगर आपका कॉमन कॉलम है तो इट्स मोर बेटर. और आपके अलग अलग नाम्स हैं सो देन ऑल्सो इट वर्क समटाइम्स, बट आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा. बट अगर आपका सेम कॉलम नेम्स है सारे शीट्स के अंदर, देन यू कैन एक्चुअली व्हाट कंबाइन द डेटा इन वन सिंगल प्लेस एंड यू कैन डू द एनालिटिक्स ऑन दैट. ठीक है, आई थिंक अब लोड हो रहा है, सो आई थिंक इट्स ओपन. हाँ, सी, आप देख सकते हो ये सारा सोर्स का नाम है. ये सारा अप्रैल शीट से आ रहा है. सी, उसके अंदर तीन कॉलम्स थे, डेट, क्लाइंट एंड सेल्स इन मंथ. आप देख सकते हो सारा डेटा कंबाइन हो चुका है. सो जितने भी हमारे इधर फाइल्स थे ये सारा एक में कंबाइन हो चुका है. ठीक है. सो लाइक दिस विल डू इट समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, सो मे बी नेक्स्ट वीक. सो स्टिल वी हैव मेनी टॉपिक्स इन पावर क्वेरी एडिटर. आई डोंट नो ये आपके आगे के सेक्शन में आएंगे, बट इफ इट नॉट देयर आई टच, बिकॉज इसके अंदर इफ़ यू गो एंड चेक, ठीक है, इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. जैसे इफ आई गो टू माई होम सेक्शन, इसमें अपेंड, मर्ज, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड विल सी लाइक दिस इंडिविजुअल सेक्शन, जैसे टेक्स्ट का हम अलग से देखेंगे, नंबर का देखेंगे, डेट, टाइम, टाइम का भी देखेंगे. आई विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द पावर क्वेरी एडिटर. बट जस्ट टू गेट स्टार्टेड, जितना हमने आज किया है प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस दैट पार्ट. ठीक है. Fine. So if you have doubts, you can be here. Others, you can leave. Okay. So I think like I'll share the resources one last time. So I think this is your final sheet for up to today's class, right? So this one. Sunidhi, what error you're getting? How to log in Power BI Desktop? See, in the Power BI Desktop, don't log in it. You're asking this login, Sunidhi. You're asking about this login. This login will not work. Don't log in here. If you're opening this, then work here itself. Okay. Huh. This one non required. I told right. This for this you need to have some edu email, yeah, any email which is except at the rate gmail.com, yahoo.com or public domains. ठीक है. Yeah. Any other doubts? Yeah, yeah. Without login, you can do it. Yes. No, because I think it will not work. Any which is public email address will not work. So you should have like work email address or student email address. I use uh, ZenBook. School ID will work. Okay, but it should not be here at the rate gmail.com. Okay.
ठीक है. College email address not working. What transformations you're doing? Because जो original source है that will be there. Because even I told right there is some restrictions right सचिन. अगर आप सोच रहे हो कि सर फिर इसमें हो रहा है तो इसलिए मैं बोला डायरेक्ट के अंदर कुछ restrictions हैं. जैसे टेबल व्यू नहीं देख सकते हो, so मे बी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर भी कुछ restrictions होंगे उधर. ठीक है. Saurabh, this should actually work. Why? What error is showing? Have you signed in? Have you have Microsoft account for this? वो ईमेल आईडी काम करेगा, edu.in काम करेगा. So just check if you have माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है इसके. अगर अकाउंट नहीं है पहले आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बनाओ इस ईमेल आईडी से, देन यू डू इट. मतलब आप देख सकते हो व्हाट इज हैपनिंग इन दैट, बट अगर नहीं कर पा रहे दैट्स फाइन, जब आपको मिलेगा यू डू इट.